हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष गर्ग अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन टॉपिक क्लियर करवा दिया है। इन टॉपिक्स के वीडियो के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर के उन टॉपिक्स को, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उस टॉपिक्स के वीडियो को क्लियर कर सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। In this chapter, we'll revise that what is communication. Communication is the process of transmitting the message and receiving the response of that message. The person who sends the message is known as sender, and the person who receives the message is known as receiver, and the response to the message is known as feedback. These things we have already studied in previous videos, and since the feedback requires another message to be communicated by the sender to the receiver, so communication process becomes a circular process. Now, effective communication is that communication in which the receiver is able to understand what the sender wants to convey in the same form. The principles refers to the guidelines that are followed in performing or completing a task or job so as to attain predetermined objectives. Now we will see the principles of effective communication. For an effective communication, there are some principles that must be kept in mind. These principles are principle of clarity. In any communication, a message is given by sender. The message must be as clear as possible. तो जो सेंडर के द्वारा मैसेज दिया जाता है वो क्लियर होना चाहिए। There should be no ambiguity. The message can be conveyed properly only if it has been clearly formulated in the mind of the communicator. मैसेज क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेटर के माइंड में। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। The sender must know clearly the purpose of communication before actually transmitting the message. जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है सेंडर, उसके दिमाग में उसका पर्पज भी क्लियर होना चाहिए कि क्या पर्पज है मेरे कम्युनिकेशन करने का। द ऑब्जेक्टिव मे बी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन, इनिशिएट एक्शन एंड change another person's attitude and so on. If the purpose of communication is clear, it will help in the choice of mode of communication. अगर कम्युनिकेशन का मैसेज का पर्पज क्लियर है तो वो बहुत सहायता करेगा आगे के कम्युनिकेशन में भी। Next है principle of understanding the receiver. Understanding is the main aim of any communication. The communication must create proper understanding in the mind of the receiver. The aim of any communication is to understand the message received by the receiver. तो next है principle of consistency. The message to be communicated should be consistent with plans, policies, programs, and goals of the enterprise. The message should not be conflicting with previous communication. It should not create confusion and chaos in the organization. Principle of consistency बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैसेज का पॉलिसी क्या है, प्लान क्या है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी एडिक्वेट एंड complete, otherwise it will be misunderstood by the receiver. Inadequate communication, delayed action, poor public relations makes the message ineffective. Next है principle of feedback. The communication is a two-way process and providing opportunity for suggestion and criticism. Since the receiver is to accept and carry out the instructions, his reactions must be known to the sender of message. The latter must consider the suggestion and criticism of the receiver of
इंफॉर्मेशन। तो फीडबैक भी इसका एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एट द राइट टाइम। द कम्युनिकेटर मस्ट कंसिडर द टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन very important so that the desired response is created in the mind of the receiver. Now student एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, उसके द्वारा समझाया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, सिक्स है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, सेवन है प्रिंसिपल ऑफ टाइम। आप इस डायग्राम को भी बना देते हो तो देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट है जो कि सभी चैप्टर में आपको देखने को मिला है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। इसका 7 C's का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। जैसे ये डायग्राम है, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, देखिए आप। क्लियरिटी, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कंसिडरेशन, कंप्लीट, कर्टियस। तो ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। 7 वेज हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। नाउ वी सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अच्छा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वेदर इट इज एट होम, एट वर्क और विद आवर फ्रेंड्स। चाहे हम अपने काम पर हों, चाहे हम अपने घर पर हों, चाहे हम फ्रेंड्स के साथ हों। ए पर्सन who can communicate effectively will always have the advantage when dealing with people. The 7 C's of communication are 7 attributes that you need to keep in mind while communicating your message. एट्रीब्यूट हैं ये 7 जो कि कम्युनिकेशन के एट्रीब्यूट कहलाए जा सकते हैं। द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। आप इसको शॉर्ट में भी इनके नाम याद रख सकते हैं, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, correct, consideration, complete, courteous. Let us take a look at each attribute in detail with examples for implementation. First है clear. Convey your message in an easy to understand manner. Use short, simple sentences while speaking or writing. बोलने में और लिखने में शॉर्ट मैसेज का प्रयोग करें। द एम इज टू शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज विद अटमोस्ट क्लियरिटी। क्लियर मैसेज कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स। तो जो मैसेज आपका हो वो क्लियर होना चाहिए कि आप व्हाट यू वांट टू से, जो भी आप कहना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। जो आपका एम है उस मैसेज को शेयर करने का वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कंसाइज। कंसाइज मीन्स टू बी टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग लॉट्स ऑफ वर्ड। अवॉइड यूजिंग फिल्टर वर्ड्स लाइक यू सी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ सेंस, काइंड ऑफ, व्हाट आई मीन, सॉर्ट ऑफ। You need to ask yourself if there are any unnecessary sentences and if you have written the same points multiple times. अगर आपने ऐसे ही पॉइंट कई बार लिख दिए हैं तो ये बहुत गलत मैसेज जाता है। जैसे ए लॉट ऑफ सेंस, काइंड ऑफ, व्हाट आई मीन। बार बार में हम जैसे कई बार एक तकिया कलाम सा बोल देते हैं, यू सी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और इनको कभी बार बार में लिखना भी नहीं चाहिए। बीइंग कंसाइज सेव्स द टाइम ऑफ बोथ यू एंड योर रीडर एंड एड्स वैल्यू टू योर मैसेज। ये सभी चीज़ें आपके टाइम को बचाएंगी। नेक्स्ट है कंक्रीट। When shaping your communication, you must ensure that you are specific and that the logic and messages that you are using fit together, build on each other and support each other. Your arguments should be based on solid facts and opinions from credible sources, and you should share undeniable data to support your argument.
तो आप जो भी कम्युनिकेशन के लिए कोई भी डाटा पेश कर रहे हो वो एकदम फैक्ट होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और अपने आप को मजबूती से उसको पेश करना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट। द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट एंश्योर दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर आपने कुछ लिख करके टेक्स्ट दिया है तो उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। द मैसेज शुड बी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए मैसेज। द मैसेज शुड ऑल्सो बी एग्जैक्ट एंड वेल टाइम्ड। तो जो मैसेज आप दे रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए और समय पे दिया जाना चाहिए। द करेक्ट मैसेज हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर एंड द मैसेज accurateness also increases at the same time. So these things should be clear in mind. The message should be clear. Next, consideration. Consideration means keeping in mind the audience's requirements and views while formulating your message. Follow the you approach when dealing with your audience. Consider their level of education, interests, mindsets, etc. Emphasize on what is possible rather than what is not when dealing with them. This will result in positive outcomes during your interactions. तो कंसिडर कीजिए, जब आप कम्युनिकेटिंग कर रहे हो, आपके सामने ऑडियंस हैं, तो आप ये देखिए कि ऑडियंस उनका लेबल क्या है। मतलब जिससे आप बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, तो उसका पहले तो लेबल देखो और उसका इंटरेस्ट किस में है और उसका माइंडसेट क्या किया हुआ है उसने। तो इसी तरह से उसका लेबल देख करके ही उससे बातचीत करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। नेक्स्ट है कंप्लीट। अ कंप्लीट मैसेज गिव्स द यूजर all the information and is clear and detailed. When your message is complete, your audience knows exactly what needs to be done. Make sure all the facts you want to convey in your message are accurate and there is a clear call to action present in your message. So your message should be clear. Your message should be complete. आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। जो मैसेज डिटेल्ड, क्लियर और डिटेल्ड होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और डिटेल्ड में अच्छे से होना चाहिए। जो रिसीवर चाहता है वही चीज आपके मैसेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कर्टियस। बीइंग कर्टियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलवेज बी फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना चाहिए। रेस्पेक्ट द स्पीकर वाइल यू कम्युनिकेट। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमेशा स्पीकर की, जो बोलने वाला है, सेंडर है, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करिए। इवन इफ यू हैव सम फीडबैक दैट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट, इट कैन बी कन्वेड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। अगर आपके पास उसके प्रति कोई फीडबैक है, फीडबैक से मतलब अगर आप उसको कुछ अच्छा बताना चाह रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक आपके पास है उसके प्रति, तो आप उसको बताइए तो उसको अच्छा लगेगा। ए कर्टियस मैसेज विल लीव द स्पीकर इन अ पॉजिटिव माइंडसेट रादर देन नेगेटिव। तो आपका जो मैसेज है, आपका जो सभ्यतापूर्ण मैसेज है, वो स्पीकर को पॉजिटिव माइंडसेट करने में सहायता करेगा। Now you can see that the same message has been conveyed in a constructive and positive manner. The reader would be more likely to respond positively in this case rather than react. अब देखो नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल टूल in achieving productivity and maintaining strong, lasting working relationships at all levels of workplace. तो एक स्टूडेंट डायग्राम बनाया हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। ये डायग्राम के द्वारा भी आप अच्छे से समझ सकते हो और इस डायग्राम को अगर एग्जाम में बना के आओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर था, टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन।
होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।